My dear students, welcome to Mathological. So, in this session, we will be continuing the previous year questions from CAT examination from the topic of time, speed, and distance. Start करते हैं. First question is from CAT 2021. Mira and Amal walk along a circular track, starting from the same point at the same time. If they walk in the same direction, then in 45 minutes, Amal completes exactly 3 more rounds than Mira. If they walk in opposite directions, then they meet for the first time exactly after 3 minutes. The number of rounds Mira walks in 1 hour will be what value? Very good question. Pause this video and try to attempt it. ठीक है. Question क्या कह रहा है? They are walking along a circular track and starting from the same point at the same time. If they walk in the same direction, then in 45 minutes, Amal completes exactly 3 more rounds than Mira. So in 45 minutes, when they are walking in the same direction, Amal completes 3 more rounds than Mira. Okay, so rounds made by Amal is equal to 3 plus rounds made by Mira in 45 minutes. Isn't it? So 45 minutes में 3 extra rounds करता है. So if we divide the time by 3, तो 15 minutes में क्या सिनारियो होगा? Let us say, just an assumption कि rounds made by Amal and rounds made by Mira, ठीक है, rounds made by Amal is 12 and rounds made by Mira that is 9. 3 more है, 3 extra है in 45 minutes, तो 15 minutes में कितने होंगे? 1/3 होंगे. लेकिन this would be divide by 4, divide by 3, 4:3. और 3 rounds extra है 45 minutes में, तो 1 round extra होगा 15 minutes में. These values might not be integers, but difference तो 1 round का ही होगा. For example, अगर हम ले लें 10 and 7, तो डिवाइड बाई 3 करोगे 10 by 3 इन 15 मिनट्स, 7 by 3 इन 15 मिनट्स, बट गैप कितना आ जाएगा? गैप तो 1 राउंड का ही आएगा. तो डज नॉट मैटर कि कितने राउंड्स कर रहे हैं. तो 45 मिनट्स से 1/3 करोगे तो गैप विल बी ओनली 1 राउंड, बिकॉज 3 राउंड्स का गैप है इनिशियली. ठीक है, तो 15 मिनट्स में राउंड्स मेड बाई अमल इज इक्वल टू 1 प्लस राउंड्स मेड बाई मीरा, एंड 1 एक्स्ट्रा राउंड इंप्लाइज दैट अमल जस्ट क्रॉसेस मीरा. अमल का स्पीड मीरा से ज्यादा है एंड अमल जस्ट क्रॉसेस मीरा. इजंट इट सो? ठीक है, क्या क्लियर है? सो अमल और मीरा के बीच में 1 राउंड का गैप था, तो दैट गैप इज कवर्ड इन 15 मिनट्स. सेकंड केस, व्हेन दे आर इन सेम डायरेक्शन. सेकंड केस है हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन का. In opposite direction, they meet for the first time exactly after 3 minutes. They meet after 3 minutes. So if this is the circular track, in the opposite direction, Amal की speed since fast है, तो Amal might have traveled this distance and Meera might have traveled this distance, and they met after 3 minutes. But when they are walking in the same direction, तो Amal in 15 minutes Amal completes 1 more round than Meera, यानी कि the relative speed between them, Amal just crosses Meera for the first time. ठीक है, और सेम डायरेक्शन में स्पीड्स विल बी सब्ट्रैक्टेड. रिलेटिव स्पीड क्या होगा? स्पीड सब्ट्रैक्ट होगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड विल बी एडेड. सो स्पीड ऑफ अमल एंड स्पीड ऑफ मीरा दैट विल बी एडेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, बट सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होगा. और डिस्टेंस तो 1 राउंड का ही कवर कर रहे हैं. रिलेटिव स्पीड से डिस्टेंस तो 1 राउंड ही कवर कर रहे हैं, चाहे सेम डायरेक्शन हो या ऑपोजिट डायरेक्शन हो. इजंट इट सो? तो डिस्टेंस इज सेम. Distance is same, and if distance is same, तो speed and time will be inversely proportional. Time की values हमें given है. Same direction, opposite direction, time का values क्या है? Time is same direction में 15 minutes, opposite direction में 3 minutes. Time का ratio है 15:3 यानी 5:1. So ratio of speeds will be 1:5. Same and opposite का speed का ratio आ गया 1:5. Okay. सेम एंड अपोजिट डायरेक्शन का स्पीड का रेशियो 1:5, एंड सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ अमल माइनस स्पीड ऑफ मीरा, एंड अपोजिट डायरेक्शन में दिस इज बीइंग एडेड. तो यहां से यू कैन फाइंड आउट स्पीड ऑफ अमल एंड स्पीड ऑफ मीरा. ठीक है, स्पीड ऑफ अमल माइनस स्पीड ऑफ मीरा इज टू स्पीड ऑफ अमल प्लस स्पीड ऑफ मीरा, दैट इज 1:5. सो स्पीड ऑफ अमल इज टू स्पीड ऑफ मीरा क्या होगा? इफ यू एड दीज टू,
you will be getting speed of Amal 1 plus 5 by 2, so that will be 3. If you subtract, take the difference, 5 minus 1 by 2, speed of Meera will be 2. 3:2 का रेशियो आ गया. Ratio of speeds of Amal and Meera, that is 3:2. Question is asking number of rounds Meera walks in 1 hour. Okay, think about it. 3:2 का रेशियो है स्पीड का, और क्योंकि सेम ही ग्राउंड को ट्रैवल कर रहे हैं, तो दैट ऑल्सो इंप्लाइज कि इन द सेम टाइम इफ अमल कवर्स 3 राउंड्स, मीरा विल बी कवरिंग 2 राउंड्स. इन द सेम टाइम व्हेन अमल इज कवरिंग 3 राउंड्स, मीरा विल बी कवरिंग 2 राउंड्स. ऐसा नहीं, क्योंकि टाइम सेम है, स्पीड का रेशियो 3:2 है. 300 मीटर्स ट्रैवल करेगा जितने टाइम में अमल, सेम टाइम मीरा विल बी ट्रैवलिंग 200 मीटर्स. इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम कितना लग रहा है, जितने टाइम में अमल विल बी कवरिंग 900 मीटर्स, मीरा विल बी कवरिंग 600 मीटर्स. और द सेम वे, जितना टाइम में अमल विल बी कवरिंग 3 राउंड्स, मीरा विल बी कवरिंग 2 राउंड्स. राउंड का लेंथ क्या है, इससे फर्क क्या पड़ता है? ओके, बट क्वेश्चन ने हमें इंफॉर्मेशन क्या दिया है, 15 मिनट्स में, इन 15 मिनट्स अमल इज कवरिंग 1 राउंड मोर देन मीरा. एंड इफ अमल इज कवरिंग 3 राउंड व्हेन मीरा इज कवरिंग 1 राउंड, तो 2 राउंड, तो 1 राउंड एक्स्ट्रा ही तो कर रहा है. और अगर 1 राउंड एक्स्ट्रा ही कर रहा है, तो दिस मस्ट बी द सिनेरियो आफ्टर 15 मिनट्स, आफ्टर 15 मिनट्स, 15 मिनट्स के बाद ही तो हो गए. यानी कि 15 मिनट्स में मीरा इज कवरिंग 2 राउंड्स फॉर श्योर. 2 राउंड्स बाय मीरा. अगर 15 मिनट्स में हो रहे हैं 2 राउंड्स, तो मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 1 आवर में पता चल जाएगा. सो इन 1 आवर 8 राउंड्स मीरा विल बी कवरिंग. 8 विल बी द आंसर. ओके, क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, अभी भी कंफ्यूजन हो तो ऐसा भी कर सकते हो, यू कैन एज्यूम कि राउंड का लेंथ एज्यूम कर सकते हो. तो लेट अस एज्यूम, इन दैट केस यू मे एज्यूम दैट लेंथ ऑफ अ राउंड और सर्कुलर ट्रैक का लेंथ लेट अस से d इज इक्वल टू 300 मीटर्स. एंड इन दैट केस फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज सेइंग 45 मिनट्स में अमल इज ट्रैवलिंग 3 मोर राउंड्स देन मीरा. ठीक है, सो डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? अमल की स्पीड अगर एस अमल और मीरा की स्पीड एस एम मान लें, तो द डिफरेंस बिटवीन देम और मल्टीप्लाइड बाई 45 मिनट्स, बिकॉज दैट विल बी सेइंग द डिस्टेंस कवर्ड का डिफरेंस. ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 3 मोर राउंड्स, यानी कि 3 into 300. ओके, सेकंड सिनेरियो, इन 3 minutes they are covering when the whole ground when they are walking in the opposite directions, और ऑपोजिट डायरेक्शन में वॉक कर रहे हैं, तो 3 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा? 3 into स्पीड ऑफ अमल प्लस स्पीड ऑफ मीरा, एंड दैट इज 300. सो ये हमारी 2 इक्वेशंस बन गई. सेकंड इक्वेशन से वैल्यू आ गया हमारा एस ए प्लस एस एम दैट इज इक्वल टू 100, और फर्स्ट से वैल्यू क्या आएगा? 45 है. 45 है, अरे एक सेकंड, क्रॉस करोगे 20 बचेगा, दिस विल बी 20. नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पीड्स. तो ऐड कर लोगे दोनों को, तो स्पीड ऑफ अमल विल बी इक्वल टू 60 एंड स्पीड ऑफ मीरा विल बी इक्वल टू 40. और क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ राउंड्स मीरा वॉक्स इन 1 आवर. सो मीरा का स्पीड 40 आ गया है, ग्राउंड का डिस्टेंस है 300, तो 1 राउंड का टाइम आ जाएगा. टाइम ऑफ 1 राउंड फॉर मीरा दैट विल बी 300 डिवाइडेड बाई 40, 7.5 मिनट्स. ओके, 7.5 मिनट्स आ जाएगा. क्या है, क्लियर है? क्योंकि मिनट्स में हमने अपना डिस्टेंस लिया हुआ है ना, मिनट्स में लिया हुआ है. 45 और 3 सेकंड में कन्वर्ट कर दो अदरवाइज. ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि हमने मीटर में डिस्टेंस लिया था और मिनट्स में अपना टाइम लिया था. तो उसको किसी और सेकंड्स में भी ले सकते हो, आवर में भी ले सकते हो, बट मैंने कोई दिक्कत नहीं है. जिसमें हमने माना है अपना डिस्टेंस को मीटर्स में माना है और टाइम को माना है मिनट्स में, तो हमारा जो आंसर आएगा टाइम को मिनट्स में ही आएगा. ठीक है, सारी वैल्यूज को बस सेम डायमेंशन में रखना है. तो टाइम 1 राउंड का आ गया 7.5 मिनट्स, अकॉर्डिंगली 1 आवर में डिवाइड कर दोगे 7.5, तो आंसर विल बी 1 आवर डिवाइड बाई 7.5.
minutes, so that will be equal to 8 rounds. Is that clear? ठीक है, तो वैल्यूज एज्यूम करके भी सॉल्व कर सकते हो. अगर ऐसे समझने में कंफ्यूजन हो रहा है तो वैल्यूज एज्यूम कर लो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 persons are walking beside a railway track at a respective speeds of 2 and 4 km per hour in the same direction. A train came from behind them and crossed them in 90 and 100 seconds respectively. Time in seconds taken by the train to cross the electric post क्या होगा? Okay, so they both are walking in the same direction obviously, and speed of one is 2, speed of the other is 4, and the train is coming from behind them, यानी कि train is also coming in the same direction and then crosses them in 90 seconds and 100 seconds respectively. So if train का speed is s, तो relative speed क्या हो जाएगा? Since this is the same direction वाला केस, स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. तो फॉर द फर्स्ट पर्सन, पर्सन 1 एंड पर्सन 2, फॉर द फर्स्ट पर्सन रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? s-2. सेकंड पर्सन के लिए दिस विल बी s-4. ये तो स्पीड्स आ गई हमारी. टाइम की वैल्यूज गिवन है. द टाइम टेकन इज 90 सेकंड्स एंड 100 सेकंड्स रिस्पेक्टिवली टू क्रॉस. अगर टाइम की वैल्यूज है 90 एंड 100 और ट्रेन डिस्टेंस कितना कवर करेगा? डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ इट्स ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन. ठीक है, सो दैट विल बी द डिस्टेंस. तो टाइम का रेशियो आ रहा है 90:100, डिस्टेंस सेम है. तो अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो जस्ट ऑपोजिट होगा. 9:10 है टाइम का रेशियो, 10:9 आ जाएगा रेशियो हमारा स्पीड का. 10:9 विल बी रेशियो ऑफ द स्पीड. ओके, 10 यूनिट एंड 9 यूनिट. अब चाहो तो यहां से एस की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. ओके, चाहो तो एस की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. बट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है टाइम के बारे में. द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर द क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोस्ट क्या होगा? ठीक है, एंड नहीं, क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोस्ट, व्हाट विल बी द टाइम टेकन? तो 10:9 का रेशियो आ रहा है स्पीड का व्हेन द टाइम इज 90 एंड 100. ओके, द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हेन द स्पीड इज एस, तब कितना टाइम लगेगा? Isn't it so? ठीक है, सो 10 और 9 के बीच का गैप कितना है? 1 यूनिट का गैप है. और स्पीड्स के बीच का गैप कितना है? दैट इज ऑफ 2 किलोमीटर्स. सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर. तो 10 यूनिट कितना हो जाएगा? 20. 10 यूनिट विल बी 20. Isn't it so? तो s-2 इज इक्वल टू 20, तो s आ जाएगा हमारा 22. s विल बी इक्वल टू 22 किलोमीटर पर आवर. ओके, फिर टाइम से मल्टीप्लाई करके यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड यानी लेंथ ऑफ द ट्रेन, एंड फिर डिवाइड कर दोगे. ओके, देन यू विल डिवाइड बाय स्पीड एंड आंसर अकॉर्डिंगली फाइंड आउट कर लेगा. क्या क्लियर है? ठीक है, सो बेसिकली स्पीड इज 20 इन दिस केस, टाइम टेकन इज 90, तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी 20 इंटू 90. ठीक है, 20 इंटू 90. अब स्पीड हमारा है किलोमीटर पर आवर में, टाइम है सेकंड्स में. तो या तो स्पीड को कंप्लीट कर लो मीटर पर सेकंड में, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 5/18. ओके, बट देन डिवाइड अल्टीमेटली क्या करना है? अब तुम्हारा डिस्टेंस आ गया, लेंथ ऑफ द ट्रेन आ गया. अब डिवाइड करोगे स्पीड से, अगेन स्पीड से, और स्पीड हमारा है 22, अगेन इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5/18 और 5/18 तो कैंसिल आउट हो जाने वाला है. तो अगर स्पीड से ही मल्टीप्लाई करो, स्पीड से ही डिवाइड करो, वो किलोमीटर पर आवर में भी है तो भी डायमेंशन से फर्क नहीं पड़ेगा. सो दैट इज वाई इवन इफ यू आर नॉट मल्टीप्लाइंग बाय 5/18 डज नॉट मैटर. आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 20 इंटू 90 डिवाइड बाई 22. 20 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 22, सो दैट विल बी 900 बाई 11. 11 8 जार 88 बचा 20, तो ऑलमोस्ट 82 के आसपास वैल्यू आ जाएगा हमारा. ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी अवर आंसर. ओके, another way to think about this question is that speeds are s-2, s-4, और जहां पे आंसर चाहिए that is speed is s. तो स्पीड हमारी क्या है? these are in AP, arithmetic progression. Sequence is important. ठीक है, they should be in proper order, so they are in arithmetic progression. s then s-2 then s-4. so speeds are in AP. if speeds are in AP, time will be in HP. अब s से टाइम हमें पता नहीं, लेट अस से टाइम विल बी t. s-2 स्पीड से टाइम इज 90, s-4 स्पीड से टाइम इज 100. दिस 90 विल बी हार्मोनिक मीन ऑफ t एंड 100. तो 90 विल बी इक्वल टू
2 into 100 into t डिवाइड बाई 100 प्लस टी. ओके, जीरो से गया जीरो. So now this becomes 900 plus 90 is equal to 20t. So 11t is 900 and hence t will be equal to 900 by 11. That will be the answer. Approximately 82 seconds. Option B is the answer. And to answer this question, we do not need to find out length of the train. तो उसको कैलकुलेट नहीं करना है. Even speed of the train find out करने का भी as such कोई जरूरत नहीं है. ठीक है. So that is also not something that we need to calculate. क्या ये clear है? Okay. Next question. A straight road connects points A and B. Car 1 travels from A to B and car 2 travels from B to A, both leaving at the same time. After meeting each other, they take 45 minutes and 20 minutes respectively to complete their journeys. अब ये देखो कितने बार ये मीटिंग वाला क्वेश्चन आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है. Such a frequent question, and there is a point A, there is a point B, and car 1 is traveling from A to B, and car 2 is traveling from B to A. Both leaving at the same time. After meeting each other, they take 45 minutes and 20 minutes respectively. 45 minutes and 20 minutes respectively to complete their journeys. If car 1 travels at the speed of 60, तो speed of car 2 क्या होगा? ठीक है, तो we can find out the time they took in meeting, because the formula will be time is equal to t is equal to square root of t1 t2. t1 is 45, t2 is 20. t1 is time taken by first car, t2 is time taken by second car after meeting. तो t is equal to square root of 45 into 20 और that is 900. तो t हमारा आ जाएगा 30 minutes. 30 minutes आ जाएगा. क्लियर है? So time taken is 30 minutes here. Okay, क्लियर है? क्वेश्चन इज आस्किंग स्पीड ऑफ कार 2 क्या होगा. तो फोकस ऑन एनी स्ट्रेच. इस स्ट्रेच पे फोकस कर लेते हैं. लेट अस से दिस इज AM. तो ऑन AM डिस्टेंस इज सेम फॉर बोथ कार 1 एंड कार 2. तो डिस्टेंस सेम है. टाइम की वैल्यूज हमें गिवन है. टाइम वैल्यूज आर फॉर कार 1 एंड कार 2, टाइम वैल्यूज आर 30 मिनट्स एंड 20 मिनट्स. तो इफ टाइम का वैल्यूज 30 एंड 20, तो टाइम का रेशियो 3:2. स्पीड का रेशियो विल बी जस्ट ऑपोजिट 2:3. एंड स्पीड ऑफ कार 1 इज गिवन. कार 1 का स्पीड कितना है? 60 है. तो 2 मिनट्स इज इक्वल टू 60. तो 3 मिनट्स क्या हो जाएगा? विल बी इक्वल टू 90. Option B will be the answer. That will be equal to 90. Okay. Or you could have said straight away that speed of car 1 divided by speed of car 2, that is equal to square root of T2 by T1. Speed of car 1 divided by speed of car 2 is equal to square root of T2 by T1. Straight away find out कर सकते थे. तो that will be square root of 20 by 45 और that is 4 by 9, यानी कि this value will be 2 by 3. तो कार 1 और कार 2 का स्पीड का रेशियो आ गया 2 by 3. 2 की वैल्यू है 60, तो 3 will be equal to 90. ओके, क्लियर? ठीक है. Next question. Leaving home at the same time, Amal reaches office at 10:15 a.m. if it travels at 8 km per hour and 9:40 a.m. if it travels at 15 km per hour. Leaving home at 9:10 a.m. at what speed in km per hour must he travel so as to reach office exactly at 10 a.m. So Amal leaves his home at some time that we do not know and reaches office in the first case at 10:15, in the second case at 9:40 when his speed is 8 and 15 respectively. So distance तो same है. Distance is same between home and office, obviously distance same है. और अगर distance same है तो speed and time will be inversely proportional. Speed will be inversely proportional to time. Okay, speed की values are given. So speed is 8 and 15. तो अगर speed का ratio 8:15, time का ratio क्या होगा? Exactly opposite होगा, 15:8. ओके, बट एग्जैक्टली हमें पता नहीं है स्टार्टिंग टाइम क्या है, तो टोटल टाइम की वैल्यूज तो पता नहीं है. स्टार्टिंग टाइम क्या है दैट वी डू नॉट नो, बट वी नो
कि इन द फर्स्ट केस ही इज रीचिंग एट 10:15 एंड इन द सेकेंड केस ही इज रीचिंग एट 9:40. तो जो गैप है, गैप बिटवीन देम, द डिफरेंस वी नो, दिस डिफरेंस वी नो. डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 9:40 10:15. डिफरेंस इज 20 + 15 35 मिनट्स. तो डिफरेंस बिटवीन द टू टाइम वैल्यूज इज 35 मिनट्स बिकॉज एक टाइम हमारा है, दिस इज T1 लेटर से एंड दिस इज T2. तो T1 - T2 इज इक्वल 35 मिनट्स. और टाइम का रेशियो आ रहा है 15:8. डिफरेंस कितना आ रहा है? 7 मिनट्स का. तो 7 यूनिट विल बी इक्वल टू 35. 7 यूनिट विल बी इक्वल टू 35 मिनट्स. और अगर 7 यूनिट है 35 मिनट्स तो 1 यूनिट आ जाएगा 5 मिनट्स. 1 यूनिट आ जाएगा हमारा 5 मिनट्स. अब किसी भी एक टाइम की वैल्यू को निकाल लो. अगर 1 यूनिट है 5 मिनट्स तो 8 यूनिट आ जाएगा हमारा. 8 × 5 40 मिनट्स. ठीक है. सो एट द स्पीड ऑफ 15 ही इज रीचिंग एट 9:40 AM और टाइम लग रहा है 40 मिनट्स का. और टाइम अगर लग रहा है 40 मिनट्स का तो ही मस्ट हैव स्टार्टेड एट 9. ही मस्ट हैव स्टार्टेड एट 9 AM, तभी तो 40 मिनट्स में पहुंच जाएगा 9:40 पे. T2 इज इक्वल टू 40. क्लियर है? ठीक है. सो एट द स्पीड ऑफ 8 ही इज टेकिंग टाइम 40 मिनट्स. तो यहां से एक सेकंड. एट द स्पीड ऑफ 15 ही इज टेकिंग टाइम 40 मिनट्स. ठीक है. 15 की स्पीड से इज टेकिंग टाइम 40 मिनट्स. यहां से हमें क्या मिल जाएगा? वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस नाउ. स्पीड भी पता चल गया, टाइम भी पता चल गया, डिस्टेंस पता चल जाएगा. तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 15 km/h मल्टीप्लाइड बाय 40 मिनट्स यानी कि 40/60 आवर्स. 15 × 2/3 10 किलोमीटर विल बी द डिस्टेंस. This is the distance. Question is asking at what speed in km/h must he travel so as to reach office exactly at 10 AM. To reach exactly at 10 AM. Okay. 9:10 पे स्टार्ट कर रहा है, 10 पे रीच कर रहा है, 50 मिनट्स का टाइम है उसके पास में. 50 मिनट्स इज द ट्रेवल टाइम. स्पीड वी नीड टू फाइंड आउट. डिस्टेंस इज गिवन. तो स्पीड क्या होगा? रिक्वायर्ड स्पीड विल बी डिस्टेंस 10 डिवाइड बाई टाइम विच इज 50 मिनट्स. तो 50/60 इन आवर्स. So 10/5/6 which will be 60/5 and hence 12 km/h. Answer will be 12 km/h. Clear? ठीक है. ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा. अब यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू इजी थी तो वैसे भी कैलकुलेट हम इजीली कर पा रहे थे, बट अदरवाइज जरूरत नहीं था डिस्टेंस कैलकुलेट करने का. क्वेश्चन हमसे सिर्फ इतना पूछ रहा था कि 9:10 पे स्टार्ट करके 10 AM पे पहुंचे तो व्हाट शुड बी द स्पीड. तो हमें पता है एक केस में that when his speed is 15 when his speed is 15 he is taking 40 minutes. so speed s होगा तब पहुंचेगा 50 मिनट्स में. isn't it so? बेसिकली टाइम का रेशियो क्या है? टाइम का रेशियो होगा 4:5 का बिकॉज डिस्टेंस तो सेम ही कवर करनी है. तो स्पीड का रेशियो भी 5:4. 5 की वैल्यू गिवन है 15 तो 4 की वैल्यू आ जाएगी 12. ठीक है. इररेस्पेक्टिव ऑफ कि हमारा डिस्टेंस क्या है. यहां पे डिस्टेंस निकालने की ऐसे कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी हो सकता था टाइम की वैल्यू सेकंड्स में होती, मीटर्स में होती. मीटर्स में नहीं होती, टाइम की वैल्यू तो सेकंड्स में होती या मिनट में होती. ठीक है, या आवर्स में होती. और सिमिलरली डिस्टेंस की वैल्यू भी हमें कुछ गिवन होती और टाइम इंटू स्पीड मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस हमारा मे बी टिपिकल वैल्यू आता. तो उस केस में डिस्टेंस निकालना जरूरी नहीं था हमारे लिए. हमारा कंसर्न ये था कि हमें टाइम का रेशियो मिल गया है तो यहां से स्पीड का रेशियो मिल जाएगा और अल्टीमेटली स्पीड की वैल्यू मिल जाएगी. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. So a train traveled at 1/3 of its usual speed and hence reached the destination 30 minutes after the scheduled time. On its return journey, the train initially traveled at its usual speed for 5 minutes but then stopped for 4 minutes for an emergency. The percentage by which the train must now increase its usual speed so as to reach the destination at the scheduled time will be what? तो travel क्या है? पहले 1/3 of the usual speed से, that is why the train reached the destination 30 minutes after the scheduled time because the train traveled at 1/3 of the usual speed. तो स्पीड का रेशियो क्या है? डिस्टेंस तो देखो दोनों केस में सेम ही है. ठीक है, तो डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो क्या है? स्पीड 1/3 हो गई यानी कि 3 से हो गई 1 यूनिट. स्पीड 3 से हो गई 1 यूनिट. ओके, एंड दैट इज वाई द ट्रेन हैज टेकन टाइम. टाइम का रेशियो क्या होगा? एक्जैक्टली ऑपोजिट 1:3 और 30 मिनट्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं लेकिन जो गैप है डिफरेंस बिटवीन देम 2 यूनिट्स. दिस इज इक्वल टू 30 मिनट्स. दिस इज 30 मिनट्स. तो अगर 2 यूनिट्स है 30 मिनट्स यानी कि 1 यूनिट विच इज द शेड्यूल्ड टाइम. This will be 15 minutes. ठीक है, आई रिपीट, डिस्टेंस सेम था दोनों केसेस में तो स्पीड 1/3 हुई है यानी कि स्पीड का रेशियो क्या होगा? 3:1 का, 1:1/3 का या 3:1 का. स्पीड का रेशियो है 3:1 का. टाइम का रेशियो एक्जैक्टली ऑपोजिट होगा 1:3 का होगा. गैप बिटवीन देम इज द एक्स्ट्रा टाइम. तो 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 30 मिनट्स यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 15 मिनट्स और दिस 15 मिनट्स इज द शेड्यूल्ड टाइम.
जितने टाइम में द ट्रेन वॉज सपोज टू रीच, सपोज्ड, ठीक है, सपोज टू रीच, क्लियर, शेड्यूल टाइम. Then on the return journey, train initially traveled at its usual speed for 5 minutes, but then stopped for 4 minutes for an emergency. तो return journey में for the initial 5 minutes the speed was usual. Then train took a halt of 4 minutes. 4 minutes का ब्रेक लिया, ठीक है. तो टोटल टाइम टेकन इफ ट्रेन वॉज ट्रेवलिंग एट नॉर्मल स्पीड, टोटल टाइम कितना लगता, 15 मिनट्स का. आउट ऑफ दोस 15 मिनट्स 5 मिनट्स तो यूजर स्पीड से कवर किया, प्लस 10 मिनट्स का जर्नी वॉज स्टिल रिमेनिंग, दिस जर्नी इज रिमेनिंग, बट नाउ 4 मिनट्स इज वेस्टेड इन द ब्रेक फॉर एन इमरजेंसी, इन द स्टॉपेज, ठीक है. तो क्वेश्चन इज आस्किंग परसेंटेज बाय विच द ट्रेन मस्ट नाउ इंक्रीज इट्स स्पीड सो एज टू रीच द डेस्टिनेशन एट द शेड्यूल्ड टाइम. टोटल टाइम वॉज 15, 5 मिनट्स तो ऑलरेडी यूजर स्पीड से कवर कर लिया, तो बचा था 10 मिनट्स का जर्नी. But not time available is not 10 minutes because 4 minutes is wasted. So time available है 10 minus 4 minutes. So remaining distance must be covered in 6 minutes. ठीक है. यूजुअली कवर करती है ट्रेन 10 मिनट्स में ये डिस्टेंस, बट आज कवर करनी है 6 मिनट्स में. तो टाइम का जो रेशियो है, टाइम अवेलेबल का रेशियो यूजुअली 10 मिनट्स में कवर होता था, आज करना है 6 मिनट्स में. टाइम का रेशियो है 10:6. तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, 6:10. 6:10 यानी कि स्पीड मस्ट भी इंक्रीज, अगर 6 किलोमीटर पर आवर होती तो 10 करनी पड़ेगी, यानी कि 4 का इंक्रीज करना पड़ेगा. तो स्पीड में इंक्रीज करना पड़ेगा 4 का, तो परसेंटेज इंक्रीज दैट विल बी इक्वल टू 4/6 विच इज 66.67%. 4/6 और 2/3. ऑप्शन सी इज द आंसर. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. क्लियर है. ठीक है. और जरा सा भी तुम्हें कंफ्यूजन हो क्वेश्चन में, क्योंकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन फिर भी होता है, तो तुम एक वैल्यू एज्यूम कर सकते हो. इन सच ए क्वेश्चन वी बीन गिवन द टाइम का वैल्यू, ठीक है, बट स्पीड का वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं है. स्पीड यू कैन एज्यूम एनी वैल्यू, ठीक है, यू कैन एज्यूम एनी वैल्यू एज द स्पीड. ओके, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, क्योंकि स्पीड हम 1/3 कर रहे हैं, तो लेट अस एज्यूम कि स्पीड यूजुअली 30 है, 10 हो जा रही है. टाइम का क्या हो रहा है, टाइम 30 मिनट्स एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है. 30 से स्पीड हो गई 10, ठीक है. तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, 1:3, एंड दिस डिफरेंस 2 यूनिट्स, दिस इक्वल टू 30 मिनट्स. तो 1 यूनिट आ गया हमारा 15 मिनट्स. तो 30 की स्पीड से ट्रेन शुड ट्रेवल फॉर 15 मिनट्स, बट ट्रेन हैज ट्रेवल फॉर 5 मिनट्स. देन ट्रेन टुक अ ब्रेक ऑफ 4 मिनट्स. टाइम अवेलेबल इज नाउ 6 मिनट्स ओनली, ठीक है. डिस्टेंस कितना कवर करना रह गया, 30 की स्पीड से 15 मिनट से कितना डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है, 30 × 15 यूनिट्स. अब तुम स्पीड मान लो कि तुमने किलोमीटर पर मिनट में एज्यूम किया है, कुछ भी मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. द पॉइंट इज 30 × 15 कवर करना था, ठीक है. तो 1/3 तो कवर कर लिया है, 1/3 तो कवर कर लिया है, 30 × 5 तो कवर कर लिया है, बचा है 30 × 10. ये डिस्टेंस कवर करना रह गया, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, हमें ऐसा यहां मीटर किलोमीटर इन सब चीजों से कंसर्न नहीं है, तो उनमें कन्वर्ट करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है, क्योंकि वो गिवन भी नहीं कहीं पे. 6 मिनट्स में अब कवर करना है रिमेनिंग डिस्टेंस. तो स्पीड क्या होना चाहिए, 30 × 10/6. सो 50 शुड बी द स्पीड. यूजर स्पीड है 30 और अब स्पीड होना चाहिए 50. तो डिस्टेंस में स्पीड में इंक्रीज कितना है, 20 का. तो 20/30 विल बी द आंसर विच इज 1/3 और 2/3, 67%. ओके, तो वैल्यूज एज्यूम भी कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है. अगर जरा सा भी तुम्हें कंफ्यूजन हो, हमेशा वैल्यूज एज्यूम कर लो. अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है वैल्यूज, और क्वेश्चन का जो आंसर है वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करता है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस बिकॉज हमें मिनट्स में वैल्यूज गिवन है, टाइम की वैल्यूज गिवन है, तो टाइम तो इंपॉर्टेंट है, टाइम को एज्यूम नहीं कर सकते. एडिशनली हमें परसेंटेज में वैल्यू निकालना है स्पीड का, यानी कि कंपैरिजन करना है. तो कंपैरिजन करना है तो एब्सोल्यूट वैल्यूज आर नॉट इंपॉर्टेंट, वेदर दैट स्पीड इज 30 और 20 और 24 और 80 डज नॉट मैटर, आंसर विल नॉट चेंज फॉर दैट. तो यू कैन एज्यूम वैल्यूज. ओके, हाँ, ये जरूर समझ में आना चाहिए, विद प्रैक्टिस समझ में आएगा कि कहां पे वैल्यूज एज्यूम कर सकते हैं, कहां पे नहीं कर सकते, तो उतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा. नेक्स्ट, इन अ कार रेस, कार ए बीट्स कार बी बाई 45 किलोमीटर, कार बी बीट्स कार सी बाई 50 किलोमीटर, एंड कार ए बीट्स कार सी बाई 90 किलोमीटर. डिस्टेंस इन किलोमीटर ओवर विच द रेस हैज बीन कंडक्टेड क्या होगा.
डिस्टेंस इन किलोमीटर ओवर विच द रेस हैज बीन कंडक्टेड, व्हाट विल बी दैट डिस्टेंस? ओके, ठीक है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। क्या करेंगे? डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। So let us say this is the race course. Car A beats car B by 45 kilometers, यानी कि when car A is at the finishing point, car B should be 45 kilometer behind. 45 किलोमीटर बिहाइंड, ठीक है। कार बी बीट्स कार सी बाय 50 किलोमीटर। अभी जो सेकंड लाइन है इसको हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, बिकॉज कार बी जब बीट करेगा कार सी को तो कार बी विल बी एट एंड पॉइंट, बट राइट नाउ कार बी इज नॉट एट द एंड पॉइंट, इट इज 45 किलोमीटर बिहाइंड द एंड पॉइंट, ठीक है। सो इस लाइन को इग्नोर करो फॉर नाउ। कार ए बीट्स कार सी बाय 90 किलोमीटर, सो दैट एम्प्लाइज व्हेन कार ए इज एट द एंड पॉइंट, अगेन द सेम पिक्चर, कार ए एंड पॉइंट पे है, कार बी है 45 किलोमीटर बिहाइंड एंड कार सी को बीट कर रहा है 90 किलोमीटर से, तो कार सी मस्ट बी 90 किलोमीटर बिहाइंड। So this must be the position of car C. And if that is so, the distance between car C and car B, this distance is 45 kilometer. Is that it so? Now, in the final scenario, when car B reaches the end point, car B beats car C by 50 kilometers. So car C will be 50 kilometers behind. This gap will be 50 kilometers. Okay. Now compare the two positions, two scenarios, scenario 1 and scenario 2. Scenario 1 में the gap between car B and car C is of 45 kilometers. Scenario 2 में gap between car B and car C of 50 kilometers. Isn't it so? So basically हुआ क्या? And car B was 45 kilometers short of the total distance. 45 kilometers पीछे थी, बस वही 45 किलोमीटर कार बी ने कवर किया है इन द रिमेनिंग टाइम। इजंट इट सो? क्या है क्लियर है? सो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी कितना है? कार बी हैज कवर्ड 45 किलोमीटर्स एंड इन द सेम टाइम कार सी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? कार सी इज 50 बिहाइंड, पहले 90 बिहाइंड था एंड पॉइंट से, यानी कि कार सी हैज कवर्ड डिस्टेंस इक्वल टू 40 किलोमीटर्स इन द सेम टाइम। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी इज 45 एंड इन द सेम टाइम कार सी हैज कवर्ड 40 किलोमीटर डिस्टेंस। इजंट इट सो? क्या है क्लियर है? ठीक है, कार बी हैज कवर्ड 45 किलोमीटर्स एंड कार सी हैज कवर्ड 40 किलोमीटर्स इन द सेम टाइम। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या है? 45 to 40 इन द सेम टाइम, टाइम सेम है। तो इफ टाइम इज सेम तो स्पीड का भी रेशियो यही होगा, स्पीड का रेशियो आ जाएगा 9:8। बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? डिस्टेंस ओवर विच द रेस हैज बीन कंडक्टेड, टोटल डिस्टेंस पूछा है। तो इस अप्रोच से हमें स्पीड तो मिल गई बट हमें डिस्टेंस तो नहीं मिली, डिस्टेंस का कुछ आइडिया नहीं लगा, तो दोबारा सोचते हैं। ठीक है, देखो ऑलरेडी कार बी और कार सी के बीच का जो गैप था दैट वाज 45 किलोमीटर्स। हमेशा क्या होता है व्हेन द पीपल आर रेसिंग, व्हेन द टू पीपल आर रेसिंग, ठीक है, तो जब रेस स्टार्ट हुआ दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट किया है, सेम पोजीशन से स्टार्ट किया है, इजंट इट सो? जो फास्टर होगा वो बस आगे निकलता जाएगा, तो उनके बीच का जो गैप है दैट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, इजंट इट सो? तो अगर हमारा लीनियर रेस है, क्योंकि सर्कुलर में तो फिर से वापस आके मिल भी सकता है, बट लीनियर रेस में दस गैप विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। अगर स्पीड कांस्टेंट है एंड वन पर्सन इज फास्टर देन द अदर पर्सन, तो गैप विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, इजंट इट सो? तो बेसिकली इन दिस केस फर्स्ट सिनेरियो में गैप बिटवीन कार बी एंड कार सी वाज 45 किलोमीटर्स, बट फाइनली गैप इज 50 किलोमीटर्स। तो इन दिस पार्ट ऑफ द जर्नी गैप कितने से इंक्रीज किया है? 5 किलोमीटर से। गैप इंक्रीज किया है 5 किलोमीटर से, इजंट इट सो? और गैप कब 5 किलोमीटर से इंक्रीज किया है बिटवीन बी एंड सी? व्हेन बी हैज कवर्ड 45 किलोमीटर्स और टोटल गैप कितना है? 10 टाइम्स है, 50 किलोमीटर है। सो इफ टोटल गैप इज 50 किलोमीटर्स दैट इंप्लाइज कि टोटल लेंथ कितना होगा? 45 इंटू 10, 450 किलोमीटर, इजंट इट सो? टोटल लेंथ ऑफ ट्रैक विल बी 450 किलोमीटर। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। अब तुम्हारे दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर इस लॉजिक से तो ये भी सोच सकते हैं कि 5 किलोमीटर का गैप आया है बी और सी के बीच में, ठीक है, एंड सी हैज ट्रेवल्ड 40 किलोमीटर्स इन दिस टाइम, तो टोटल गैप है 50 का, तो मल्टीप्लाई करो 10 से, तो आंसर आ जाएगा हमारा 400 किलोमीटर, इजंट इट सो? ये भी तुम्हारे दिमाग में हो सकता है।
12 क्या 50 का है, यानी कि हमारा जो ट्रैक का लेंथ है दैट मस्ट बी 400. बट थिंक अबाउट इट, क्या सी हमारा एंड पॉइंट पे पहुंचा है? सी एंड पॉइंट पे तो पहुंचा नहीं है. ठीक है, तो जो हमारा ट्रैक का लेंथ आया है 400 तुमने निकाला है, दिस इज नॉट द लेंथ फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड पॉइंट, दिस इज द लेंथ फ्रॉम स्टार्ट टू द पॉइंट वेयर सी इज राइट नाउ. ठीक है, तो ये जो हमारा लेंथ आया है, दिस 400 किलोमीटर्स इज द लेंथ कवर्ड बाई सी. दैट इज वाई दिस इज नॉट द ट्रैक लेंथ. दो ऑप्शन में गिवन नहीं है, बट दिस इज द लेंथ कवर्ड बाई सी एंड दिस इज लेंथ कवर्ड बाई बी. सिंस बी इज एट द एंड पॉइंट, दैट इज वाई यहां से हम वी कैन फाइंड आउट द ट्रैक का लेंथ. क्या ही क्लियर? दैट इज वाई दिस विल बी द आंसर. 450 विल बी द आंसर. क्या ही क्लियर है? ओके, एंड दिस विल नॉट बी द आंसर. हाँ, जरूर ये कर सकते हो, 400 हमारा सी का लेंथ कवर्ड आ गया, फिर 50 ऐड कर दो, 50 ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, तब ये भी सही हो जाएगा. तो बोथ आर करेक्ट इफ यू आर अप्लाइंग द लॉजिक प्रॉपरली. ठीक है, ओके. अब इसका एक सेकंड मेथड भी देखते हैं. ये तो हो गया तरीका हमारा, एक और सेकंड मेथड भी देखते हैं. ओके, सो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है. लेट अस से डिस्टेंस इज डी, total distance is d. Now in the first scenario, A is at the end point, B is 45 km behind and C is further 45 km behind. ठीक है, further 45 behind. In the second scenario, B is at the end point and C is 50 km behind. 50 km behind. So can you find out the ratio of speed of B and C from these two scenarios? ठीक है, बिकॉज टाइम तो सेम है, तो इफ टाइम इज सेम तो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा, डिस्टेंस कवर्ड का रेशियो होगा, वैसे में स्पीड का रेशियो होगा. तो स्पीड ऑफ बी एंड स्पीड ऑफ सी का रेशियो क्या आएगा? फर्स्ट केस में डिस्टेंस कवर्ड बाय बी कितना है? टोटल इज डी, तो डी माइनस 45 एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय सी है डी माइनस 90, तो डी माइनस 45 डिवाइड बाय डी माइनस 90, दैट विल बी स्पीड ऑफ बी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ सी. सेकेंड सिनेरियो में डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इज कंप्लीट डिस्टेंस डी एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय सी इज डी माइनस 50. दिस विल बी द रेशियो. तो बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा. डी माइनस 45 डिवाइड बाय डी माइनस 90 इज इक्वल टू डी अपॉन डी माइनस 50. तो दिस विल बी डी स्क्वायर माइनस 95d प्लस 45 इंटू 50 एंड दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 90d. डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, सो 5d इज इक्वल टू 45 इंटू 50. 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, 10 बचेगा, 45 इंटू 10, डी विल बी इक्वल टू 450 किलोमीटर्स. डिस्टेंस विल बी 450. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A and B are 2 points on a straight line. Ram runs from A to B while Rahim runs from B to A. After crossing each other, Ram and Rahim reach their destinations in 1 minute and 4 minutes respectively. So Ram and Rahim, after crossing, they reach their destinations in 1 minute and 4 minutes respectively. So question asking if they start at the same time, ratio of Ram's speed and Rahim's speed क्या होगा? If they are starting at the same time. ठीक है, so Ram को फर्स्ट पर्सन मान लिया, स्पीड इज S1, Rahim इज सेकंड पर्सन, स्पीड इज S2. तो S1 by S2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T2 by T1. और T2 क्या होगा? स्पीड टाइम टेकन बाय द सेकंड पर्सन आफ्टर मीटिंग. ठीक है, सो दैट इज 4 मिनट्स और T1 इज 1 मिनट. तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 by 1 दैट विल बी इक्वल टू 2. तो S1 by S2 का हमारा रेशियो आ गया, राम और रहीम की स्पीड का रेशियो आ गया, दैट इज इक्वल टू 2. ऑप्शन डी आंसर आ गया. स्ट्रेट अवे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन. अब इससे ज्यादा सिंपल क्या होगा? ठीक है, S1 by S2 केम आउट टू बी इक्वल टू 2. यहाँ पे गलती बस इतना हो सकता था, 2 के बजाय तुमने 1/2 निकाल लिया होता. ठीक है, या मे बी √2 पे पहुंच जाते किसी तरह से, बट 1/2 का मतलब ये हुआ तुमने ऑर्डर चेंज कर दिया होता तो 1/2 आंसर आया था. ऑर्डर का भी ध्यान रखना है कि स्पीड ऑफ फर्स्ट पर्सन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ सेकंड पर्सन विल बी स्क्वायर रूट ऑफ T2 by T1. और T2 है सेकंड पर्सन का टाइम आफ्टर मीटिंग और T1 है फर्स्ट पर्सन का टाइम आफ्टर मीटिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 circular tracks T1 and T2 of radii 100 meter and 220 meter respectively touch at a point A. Starting from A at the same time, Ram and Rahim are walking on track T1 and track T2 at speed 15 and 5 km per hour respectively. Number of full rounds that Ram will make before he meets Rahim again for the first
टाइम. ओके, क्वेश्चन हमसे टाइम नहीं पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है? नंबर ऑफ राउंड्स दैट राम विल मेक बिफोर ही मीट्स रहीम अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम. नंबर ऑफ राउंड्स पूछा है, टाइम नहीं पूछा है. ठीक है, एग्जैक्ट टाइम की वैल्यू हमसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है. ओके, दैट इज फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो. ओके, सो देयर आर टू सर्कुलर ट्रैक्स. फर्स्ट ट्रैक इज ऑफ 100 मीटर रेडियाई. सेकेंड ट्रैक इज छोटू सा ट्रैक ऑफ 20 मीटर रेडियाई. Okay, first track is of 100 meter radii and second track is of 20 meter radii, and they are touching at just one point. ठीक है, let us say this point is A and they are starting from A at the same time and they are walking on tracks T1 and T2. अब क्योंकि डिफरेंट ट्रैक से ट्रैवल कर रहे हैं तो उनका डायरेक्शन सेम है, ऑपोजिट, इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मिलने का सिर्फ एक ही तरीका है. दे कैन ओनली मीट एट पॉइंट ए, और किसी पॉइंट पे तो मिल नहीं सकते. दे कैन ओनली मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, तो दिस डज नॉट मैटर कि उनका जो रनिंग स्पीड है वो सेम डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इससे फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, लेट अस से दे बोथ आर. ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन फॉर राम एंड दिस इज डायरेक्शन फॉर रहीम. ओके, क्लियर? सो देयर स्पीड्स आर 15 and 5 किलोमीटर पर आवर. स्पीड्स गिवन आर 15 and 5 किलोमीटर पर आवर फॉर राम एंड रहीम. तो राम का स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर, रहीम का स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर. द नंबर ऑफ फुल राउंड्स दैट राम विल मेक बिफोर ही मीट्स रहीम अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, सो दे कैन ओनली मीट इफ दे मेड फुल राउंड्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर राम ने किए होंगे m राउंड्स, m फुल राउंड्स, और रहीम ने किए होंगे n राउंड्स, तो वो मिल तभी पाएंगे व्हेन m and n are both are integers. m and n have to be integers for them to meet. क्योंकि जब इंटीजर्स होंगे तभी तो स्टार्टिंग पॉइंट ए पे मिलेंगे. Isn't it so? क्या ये क्लियर है? Is this part clear? ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? टाइम टेकन इन कवरिंग वन राउंड फॉर राम, तो टाइम टेकन बाय राम इन वन राउंड कितना होगा? पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई आर. तो 2 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है? 100. दिस इज द पेरीमीटर. और राम की स्पीड कितनी है? 100 मीटर्स में है और स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर. तो डिवाइड करोगे तो उससे पहले 100 को भी किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो, 0.1 कर दो. पहले थोड़ा सा कन्वेंशनली सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में फिर शॉर्टकट समझेंगे कि इस क्वेश्चन में इतना कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बट पहले थोड़ा सा प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेते हैं. तो डिवाइडेड बाई 15, दिस विल बी टाइम टेकन बाई राम. 0.1 इज 1/10, दिस विल बी 2 पाई बाई 10 यानी पाई बाई 75 आवर का टाइम लगेगा राम को. सिमिलरली टाइम टेकन बाई रहीम इन वन राउंड कितना होगा? दैट विल बी 2 इंटू पाई इंटू 1/50 डिवाइड बाई 5. एक सेकेंड, हाँ 20 है ना, तो 2 इंटू पाई इंटू 1/50 डिवाइड बाई 5. दिस विल बी द टाइम टेकन बाय रहीम इन वन राउंड. इजंट इट सो? ठीक है, सो क्या वैल्यू आ जाएगा? पाई बाई 125 आर का टाइम लगेगा रहीम को इन कंप्लीटिंग वन राउंड. अब हमें चाहिए नंबर ऑफ इंटीजर राउंड्स, तभी वो मिल पाएंगे. तो टाइम टेकन बाय राम इज पाई बाई 75, टाइम टेकन बाय रहीम इज पाई बाई 125. सो वी नीड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल. एलसीएम चाहिए होगा हमें इन दोनों वैल्यूज का, जब वो मिलेंगे. इजंट इट सो? तो वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ दीज टू वैल्यूज. तो क्या आएगा एलसीएम? एलसीएम ऑफ पाई बाई 75 and pi by 125. So LCM of these two values will be LCM of numerators, which is pi only, divided by highest common factor of denominators. तो फिर 75 और 125 का highest common factor क्या होगा? 25 होगा. तो pi by 25 hours के बाद में they will be meeting. They will be meeting after pi by 25 hours. Okay. और क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे number of rounds made by Ram when they are meeting for the first time. तो pi by 25 hours total time है. राम को लग रहा है वन राउंड में pi by 75. तो नंबर ऑफ राउंड्स आ जाएगा हमारा, दैट विल बी इक्वल टू पाई बाई 25 डिवाइडेड बाई पाई बाई 75. टोटल टाइम डिवाइड बाई टाइम टेकन फॉर वन राउंड. तो दैट बी 75 बाई 25 विच इज इक्वल टू 3 राउंड्स. सो आंसर विल बी 3 राउंड्स, ऑप्शन ए.
ऑप्शन ए विल बी अवर आंसर. इज दिस क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं मेथड नंबर 2 टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. देखो रेडियाई गिवन है 100 मीटर्स एंड 20 मीटर्स और सर्कमफरेंस इज 2 पाई आर. तो बेसिकली सर्कमफरेंस और डिस्टेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस. ठीक है, सो रेडियाई का रेशियो क्या आ रहा है हमारा, दोनों केसेस में रेडियाई का रेशियो क्या आ रहा है, 120 यानी 5:1 का रेशियो आ रहा है. तो ट्रैक लेंथ का रेशियो 5:1 का होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड का रेशियो 5:1 का होगा. ठीक है, राम जो 1 राउंड में डिस्टेंस कवर करेगा और रहीम जो 1 राउंड में डिस्टेंस कवर करेगा उसका रेशियो क्या होगा, 5:1 का होगा. तो डिस्टेंस का रेशियो यहां पे हमें आ रहा है फॉर 1 राउंड, डिस्टेंस का रेशियो आ रहा है 5:1. ओके, रेशियो ऑफ डिस्टेंस इज 5:1 एंड डिस्टेंस से वी इंप्लाई इन 1 राउंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय देम. अब वो वैल्यू क्या है वो फर्क नहीं पड़ता, द रेशियो इज 5:1. स्पीड का रेशियो क्या आ रहा है, स्पीड ऑफ राम इज 15, रहीम इज 5, तो स्पीड का रेशियो आ रहा है 15:5 यानी 3:1. 3:1. तो 1 राउंड में टाइम कितना लगेगा, टाइम इज डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड. ठीक है, दिस इज फॉर राम, दिस इज फॉर रहीम. तो टाइम टेकन इन 1 राउंड दैट विल बी डिस्टेंस बाय स्पीड यानी 5/3:1. सो मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, रेशियो आ जाएगा हमारा टाइम का 5:3. तो 5:3 का रेशियो आ रहा है टाइम का इन कंप्लीटिंग 1 राउंड. 1 राउंड में टाइम लग रहा है 5 मिनट्स, 5 और 3 का रेशियो आ रहा है, तो इट कुड बी 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, 50 मिनट्स, 30 मिनट्स, डज नॉट मैटर, बट रेशियो विल बी 5:3. क्वेश्चन इज आस्किंग नंबर ऑफ फुल राउंड्स दैट राम विल मेक बिफोर ही मीट्स रहीम अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, तो अगर टाइम का रेशियो आ रहा है 5:3 यानी कि फॉर एग्जांपल सपोज कि 5 मिनट्स में राम इज कंप्लीटिंग 1 राउंड, 3 मिनट्स में रहीम इज कंप्लीटिंग 1 राउंड. तो पहली बार कब मिलेंगे, व्हेन दे बोथ आर कंप्लीटिंग इंटीजर नंबर ऑफ राउंड्स. तो दैट टाइम शुड बी द शॉर्टेस्ट मल्टीपल ऑफ दीज टू वैल्यूज. Shortest multiple of these two values 5 and 3, so that will be 15. That has to be 15, isn't it so? और अगर shortest multiple 15 है, that implies कि राम must be completing 3 rounds. 5 into 3 तभी तो 15 होगा, और रहीम must be completing 5 rounds, तभी तो 3 into 5 15 होगा. तो राम ने राउंड्स कंप्लीट किए हैं 3, आंसर विल बी 3 ओनली, ऑप्शन ए. तो अगर ये लॉजिक समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन करने में मजा ही आ जाएगा, फिर कैलकुलेशन कुछ है ही नहीं. क्या क्लियर है, यहां पे भी समझ में आ रहा होगा, ये भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बट द पॉइंट इज दिस इज मच बेटर, इवन बेटर. क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, और यही छोटी छोटी बातें हैं जो कि एग्जाम में डिफरेंस क्रिएट करती हैं. तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पे है, किस लेवल पे तुम सोच रहे हो, कितने कम टाइम में कितना बढ़िया सोच पा रहे हो. ठीक है, कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझ पा रहे हो कि व्हाट वी एक्चुअली हैव टू डू इन दिस केस. बिकॉज कैलकुलेशन को अभी और मुश्किल किया जा सकता था. ठीक है, स्पीड की वैल्यूज को और टिपिकल किया जा सकता था. तो बहुत सारी चीजें जो कि क्वेश्चन को मुश्किल कर सकती हैं, बट अल्टीमेटली इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस रेशियो अप्रोच यू विल सॉल्व क्वेश्चन इजीली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी इज थ्राइस दैट फ्रॉम ए टू बी. 2 ट्रेन्स ट्रैवल फ्रॉम ए टू सी वाया बी. ए टू सी वाया बी. ओके, सो distance from B to C is thrice that of A to B. So this is A, this is B, this is C, and distance का रेशियो आ रहा है 1:3 का. 2 trains travel from A to C via B. The speed of train 2 is double that of train 1 while traveling from A to B, and their speeds are interchanged while traveling from B to C. The ratio of time taken by train 1 to that taken by train 2 in traveling from A to C. अब यहाँ पे देखो सारी चीजें हमें रेशियो में गिवन है, कहीं पे भी कोई भी एक्चुअल वैल्यू गिवन नहीं है. तो वी कैन एज्यूम एनी वैल्यू. पहले वेरिएबल वैल्यू मान लेते हैं, उसके बाद में फिर वेरिएबल के बजाय एक्चुअल वैल्यूज मान लेंगे. ठीक है, सो लेट अस अज्यूम कि डिस्टेंस हमारा ए टू बी है डी और बी टू सी है 3D. डी एंड 3D आर डिस्टेंसेस. स्पीड ऑफ ट्रेन 2 इज डबल दैट ऑफ ट्रेन 1. तो ट्रेन 1 और ट्रेन 2 देयर आर 2 ट्रेन्स. सो स्पीड ऑफ ट्रेन 2 इज डबल दैट ऑफ ट्रेन 1 व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी. सो ए टू बी लेट अस से ट्रेन 1 का स्पीड है s और ट्रेन 2 का स्पीड है 2s. And then speeds are interchanged while traveling from B to C. तो B to C क्या होगा, ट्रेन 1 का स्पीड विल बी 2s एंड ट्रेन 2 का स्पीड विल बी s. ठीक है, टोटल टाइम का रेशियो निकालना है. तो ट्रेन 1 को टाइम कितना लगने वाला है, इन द फर्स्ट स्ट्रेच फ्रॉम A to B टाइम टेकन विल बी d by s. इन द सेकेंड स्ट्रेच डिस्टेंस इज 3D, स्पीड इज 2s, तो 3D by 2s. ठीक है, तो सम क्या आ जाएगा,
दिस विल बी d by s एंड 2d by 2s प्लस 3d by 2s 5d by 2s हो जाएगा. फॉर ट्रेन 2 इन द फर्स्ट स्टेज टाइम टेकन इज d by 2s, इन द सेकंड स्टेज टाइम टेकन इज 3d by s. तो 3d by s इज 6d by s, 6d by 2s, 6d by 2s प्लस d by 2s 7d by 2s हो जाएगा. बस रेशियो निकाल लो. तो 5d by 2s 2s है इज टू 7d by 2s. तो d by 2s तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5:7 ही रह जाएगा. आंसर विल बी 5:7. ऑप्शन सी. क्लियर है? 5:7 विल बी द आंसर. ओके. यही सेम काम तुम एक्चुअल वैल्यूज मान के भी कर सकते थे, बट जब भी वैल्यूज एज्यूम करो तो वैल्यूज ऐसी एज्यूम करो जिनसे कि हमारा जो भी वैल्यूज आए डिवाइड करने पे वो सब इंटीजर ही आए. तो डिस्टेंस को हमने लेट अस से 100 और 300 मान लिया, 100 एंड 300 बिकॉज रेशियो हमारा 1:3 का है. स्पीड मान लिया ट्रेन 1 का और ट्रेन 2 का. इनिशियल स्पीड क्या है? ट्रेन 2 वाला स्पीड डबल है, ट्रेन 1 का मान लो 10, ट्रेन 2 का मान लो 20, और यही स्पीड इंटरचेंज हो जाएगा. ट्रेन 1 का 20 हो जाएगा, ट्रेन 2 का 10 हो जाएगा इन द स्ट्रेच BC. अब टाइम टेकन बाई ट्रेन 1 कितना होगा? दैट विल बी 100 by 10 which is 10 hours plus 300 by 20 which is 15 hours, 25 hours हो गया. टाइम टेकन बाई ट्रेन 2 100 by 25 hours plus 300 by 10 30 hours, तो 35 hours हो गया. तो रेशियो आ जाएगा हमारा 25:35 which is 5:7. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. ओके, क्लियर है? सो विच एवर यू प्रेफर, बोथ मेथड्स आर वेरी इजी. Next question. A and B are two railway stations 90 km apart. A train leaves A at 9 a.m. heading towards B at a speed of 40 km per hour. Another train leaves B at 10:30 a.m. heading towards A at a speed of 20 km per hour. Trains को कब मुलाकात होगी ट्रेन्स की? When the trains are meeting, that is the question. तो A and B are 90 km apart. बना दो A और B को. The distance is 90. The distance between them is 90. Okay. Whenever two objects are meeting, if they are starting at the same time, ठीक है, let us say the two objects are there and if they are starting at the same time and they are meeting after some time, ठीक है, if they are starting at the same time, both objects are starting at the same time, then travel time will always be same for both of them when they are meeting, isn't it so? Meeting time same होगा दोनों के लिए. but second case क्या होता है हमारा? second case है when they are not starting at the same time. ठीक है, so maybe the first object is starting at t is equal to 0, the second is starting at t is equal to 1. ठीक है, तो यहां पे भी सेकंड केस में भी हमें टाइम दोनों के लिए सेम बनाना है. ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे? सिंस सेकंड ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग एट t इज इक्वल टू 1, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को पहले ट्रैवल करा दो टिल t इज इक्वल टू 1. लेट अस से दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट 1. ठीक है, एट t इज इक्वल टू 1. दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 1. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज सेम एज द फर्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस पार्ट. अब इस पार्ट में तो सेम ही है ना, t इज इक्वल टू 1 पे दोनों ऑब्जेक्ट का हमें पोजीशन पता है, डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, निकाल लोगे. ठीक है, नाउ दीज टू केसेस आर एग्जैक्टली सेम. तो यही सेम काम हम यहाँ पे भी करेंगे बिकॉज दे बोथ ट्रेन्स आर स्टार्टिंग एट डिफरेंट टाइम्स. ठीक है, ट्रेन ए स्टार्ट्स एट 9 a.m. अ ट्रेन लीव्स, तो ट्रेन 1 लीव्स ए एट 9 a.m. स्पीड इज 40. देयर इज अनदर ट्रेन T2 दैट लीव्स बी एट 10:30 a.m. तो बी से 10:30 पे लीव कर रही है. दैट इंप्लाइज कि 9 से लेकर 10:30 तक ट्रेन 1 इज ट्रैवलिंग अलोन. फ्रॉम 9 a.m. to 10:30 a.m. ट्रेन 1 is the only train that is traveling towards the destination, towards the meeting. तो 9 से 10:30 तक बेचारे को अकेले ट्रैवल करा देते हैं. तो let us say this is the point where it reaches at 10:30. डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? दिस डिस्टेंस विल बी 40 into 1.5 hours, यानी कि 60 किलोमीटर्स. सो रिमेनिंग डिस्टेंस हमारा आ जाएगा 30. ठीक है, अप टू स्केल ऑब्वियसली नहीं है. ठीक है, 60 इतना छोटा सा है, 30 इतना बड़ा हो गया. ठीक है, तो 30 किलोमीटर डिस्टेंस इज रिमेनिंग at 10:30 and T1 is here going at a speed of 40 and T2 is here going at a speed of or starting at the speed of 20. So speeds will get added up, opposite direction से आ रहा है, distance है 30, so time taken will be 30 किलोमीटर. that distance to be covered divide by 40 plus 20, 30 by 60, 1/2 hours का टाइम लगेगा और 10:30 plus 1/2 करोगे, आंसर will be 11 a.m. that is it, that's all. Okay, clear? अदरवाइज इक्वेशन बना के सॉल्व करना हो तो 9 am पे स्टार्ट किया है, मान लिया कि 9 am से t टाइम लगेगा, t आवर्स लगेगा.
सो डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन 1 कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन 1 कितना होगा, 40 की स्पीड है तो 40 इंटू टी, दैट विल डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन 1। जब हम एज्यूम कर रहे हैं कि 9 AM के बाद में टी आवर्स और लग रहा है फॉर मीटिंग, ओके। डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन 2 कितना होगा, ट्रेन 2 हैज स्टार्टेड एट 10:30 यानी 1.5 आवर्स के बाद में स्टार्ट किया है, तो t minus 1.5 विल बी ट्रैवल टाइम फॉर ट्रेन 2, स्पीड इज 20, तो एड दीज टू एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 90 टोटल डिस्टेंस, 40t प्लस 20t, 20 into t minus 1.5 दैट इज इक्वल टू 90, तो ये होगा 40t प्लस 20t 60t minus 20 into 1.5 दैट इज 30 is equal to 90, so t will be equal to 120 by 60 which is equal to 2 hours, this is equal to 2 hours, तो 9 plus 2 11 आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर है? सो दैट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, और सिंस टाइम स्पीड डिस्टेंस इज द लास्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट सेशन में फिर हम कंटिन्यू करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस के फर्दर क्वेश्चंस को, एंड आई बिलीव जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए इस सेशन में वो तुम्हें समझ में आएंगे। इफ देयर इज एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन देन मेक श्योर टू हिट द कमेंट सेक्शन एंड comment about that doubt of yours, and I'll try to resolve that as well. My name is Aditya Kumar Tiwari. That's all in this session, and if you like the session then make sure to hit the like button as well, and if you're not already subscribed to the YouTube channel then make sure to subscribe to it. That is all. Bye bye, take care and keep learning.